Assalamu alaikum, everybody. We are super excited today because we have got a very special guest here. His name is Asim Khan. And Asim Fida Khan is a visual effects artist, and he's currently working in Vancouver, Canada. He graduated from NCA in 1998 in architecture. And then after graduating, he decided to go for master's in Swana College of Art and Design, and he did his majors in animation and special and visual effects. And right after graduating in 2004 in March, he landed into his first job, which was in digital domain in Los Angeles, California, where they were working on the movie called I, Robot. And so from there on, his journey began into Hollywood cinema, or as a visual artist in Hollywood cinema. And his career actually spans over a time of 16 years, and like in animation and visual effects. And he has worked across many countries like United States and Canada and UK. And he has been associated with Sony Pictures, Nickelodeon, Digital Domain, Cinecide, Spin Visual Effects. And currently he's working with Fuse FX in Vancouver, Canada. And some of the movies which he has worked on, and you must have seen many of them, which are like I, Robot, Stealth, Barnyard, Spider-Man Into the Spider-Verse, Harry Potter and the Deathly Hallows, 1 and 2, and Total Recall, Dread, Snow White and the Huntsman, Game of Thrones, G.I. Joe, and this list goes on because he has been associated with different TV channels and films. So, and some of the accolades that he was part of were Spider-Man Into the Spider-Verse, which won the Oscar Award, Golden Globe, and BAFTA for the Best Animated Film in 2020. And then he also worked on Game of Thrones, which won Emmy Awards for 3 consecutive years. And then he worked on Expanse, which won Director Guild of America Award for 2 consecutive years. And he also worked on many other films which were nominated for Academy, Emmy, and Directors Guild. And very interestingly, he has collaborated with the people like with Bilal Shari, who was working on the movie The Legend of Molajat, and you must have seen its trailers on TV screens. But soon that this film will be released. But this was done in 2019 at that time, and he worked as a visual artist on that. And they did visual effects integration, like he did visual effects integration on some 65 shots of that film. So like there's a long list on which he has actually worked on. And we are very thankful to him that he accepted our invitation and like agreed that he will join our talk session. So over to you, Asim. How would you like to go about this talk session? Thank you, Ji. Thank you so much for inviting me. Generally, तो आपने मेरा intro बता दिया है. I started working in 2004 when I graduated from Savannah College. जो मेरा major था, that was actually character animation. ठीक है. Minor मेरा था visual effects. That included lighting and compositing and some texture work. Which was more sort of elective. My major was character animation. So when I landed my first job at Digital Domain, I went there as a character animator. So अब character animation जो है is ज़्यादा animated features में होती है. दो categories हैं movies की, animated feature और live action. Live action में आपकी जो आप films shoot करते हैं उसके बाद CG integrate करते हैं, like iRobot, Stealth हो गई, और एनिमेटेड फीचर हो गई जैसे मोस्टली पिक्सार एंड डिज्नी लोग करते हैं. तो आई गॉट अ जॉब देयर एज अ कैरेक्टर एनिमेटर. तो राइट आफ्टर दैट
उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट था स्टेल्थ, सो दे सेड कि स्टेल्थ इज मोर अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्लेन, तो हमारे पास कैरेक्टर एनिमेशन की ओपनिंग नहीं है. We have a lighting position open if you wanted to, if you're interested in that, because आपकी हमने show reel देखी and we think you have a good potential to be a lighting and compositing artist. So I said, okay, ठीक है, मैं I'll pick up that job. ठीक है. तो बस उसके बाद ये है कि I was more associated with lighting and compositing side of production as opposed to character animation. So I worked there on a couple movies, and then right after that, Barnyard animated project, animated feature थी Nickelodeon की. I moved on to that studio. ठीक है. वहाँ पे काम किया कोई 1.5-2 साल, एंड देन उसके बाद एक गेमिंग स्टूडियो में आई थॉट मे बी आई शुड ब्रांच आउट इनटू गेमिंग एंड सी कि वो कैसा है, बट वो मुझे कोई मेरे इंटरेस्ट का लगा नहीं ज़्यादा, इवन ठीक दो है. आई वर्कड ऑन कपल गेम टाइटल्स, बट देन आई लेफ्ट एंड आई सेड कि चलो देखते हैं, अभी आई डोंट थिंक दिस इज रियली फॉर मी बिकॉज आई एम मोर इनटू फिल्म्स एंड ऑल दैट. उसके बाद आई एक्चुअली डिसाइडेड टू कम बैक टू पाकिस्तान. ठीक है. मैंने कहा मैं रहा के देखूं कि क्या है, अगर तो ऑप्शन कोई बनती है तो यू नो देयर इज नो अदर ऑप्शन बेटर देन स्टेइंग इन पाकिस्तान. बट मैं Exactly. जिस वक्त पाकिस्तान आया बैक इन 2007, ठीक है. एनिमेशन वाज एट अ वेरी वेरी अर्ली स्टेज, ठीक है. और चैनल्स वगैरह वहाँ पे थे. तो आई एक्चुअली 1 साल मैंने काम किया वतीन टेलीकॉम में, जो उनका फिर आई हेल्प देम सेट अप द वतीन मल्टीमीडिया डिपार्टमेंट, जब वो अपना चैनल्स और सारे वो शुरू कर रहे थे. बट अगेन वो थोड़ा सा डिविएट कर गया मेरी फील्ड से. सो आफ्टर लाइक रफली 1 साल के बाद आई मूव टू लंदन. ठीक है. लंदन में फिर देन आई स्टार्टेड विद फ्रेम स्टोर, जहाँ पे वो मूवी कर रहे थे टेल ऑफ डेस्परो. वहाँ पे I worked as a lighting and compositing artist. Right after that, I moved to MPC, which is another big studio in London. उस टाइम वो लोग मार्वल की GI जो उसकी DC की GI जो पे काम कर रहे थे, उस पे करके and then I moved on to Base Black and Cinesite. वहाँ पे I got a chance to jump onto Harry Potter की सीरीज पे, ठीक है. वहाँ पे काम किया. एंड टोटल रिकॉल, इसका एक पुराना भी आया था, टोटल रिकॉल बैक इन 1980s. So they made a sequel of that in 2012. And then there was Snow White and Huntsman, एक उनकी नई सीरीज आई थी जिस पे उन्हें 2 सीक्वल्स बनाए हैं. उस पे I got a chance to work on that. So mostly जो पुरानी मूवीज थी, जैसे एक जज ड्रेड एक मूवी थी, वो उसका एक नया सीक्वल बनाया, ड्रेड 2012. So I kept working on feature side of the films. अब हुआ ये कि लंदन में यूजुअली जो the way this film business works is, पहले मैं अमेरिका में था तो वहाँ पे काम था, बट एकदम से एक वेव आई तो मोस्ट ऑफ द वर्क मूव टू यूके. उसमें ये होता है कि कंपनीज जो है, गवर्नमेंट जो है, एनी पर्टिकुलर यूके गवर्नमेंट जो है, उन्होंने टैक्स ब्रेक्स देना शुरू कर दिए. ठीक है. उसका मतलब ये है कि अगर आपने 7 रुपए का कोई काम करवाया तो उसके ऊपर 3 रुपए आपने टैक्स देने हैं. तो यूके में आप जब यूके गवर्नमेंट का इंसेंटिव ये था कि आप 7 रुपए हमें दें, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे. वो दैट वाज अ प्रीटी लुक्रेटिव थिंग फॉर ऑल दीज बिगर स्टूडियोज. तो वो सारे मूव कर गए यूके में. फिर अब इसी तरह ही कंपेरेटिव जो चीज़ है वो चलती रही. फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉप था उनका बना वो कनाडा, बिकॉज कनाडा एक्चुअली गेव देम इवन मोर कंपेरेटिव टैक्स ब्रेक्स. तो दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द वर्क एंड ऑल द बिगर स्टूडियोज आर इन कनाडा राइट नाउ. तो अच्छा. उसके बाद यही हुआ कि मेरा तो सिलसिला इस तरह ही चलता रहा कि आई कीप चेजिंग आफ्टर माय पे चेक. जहाँ जहाँ इंडस्ट्री जाती गई मैं उसके साथ साथ पीछे पीछे आता रहा. तो आजकल ठीक कनाडा काफी बूम पे है. मोस्ट ऑफ द वर्क इज गोइंग बैक टू द यूएस, लेकिन फिर भी 80% जो है, नॉट लाइक 65-70% इज ओवर हियर. सम 10% इज स्टिल इन यूके. और यूएस में जो कंपनीज है वो बड़ी डेडिकेटेड है, उनकी अपनी कंपनीज है जिसमें डिज्नी है, ड्रीम वर्क्स है. ये सब कंपनीज अभी वहाँ पे जिनके ऑफ शोर यहाँ पे खुले थे, बट देन दे डिसाइडेड टू जस्ट रैप इट अप एंड वापस चले गए हैं. तो अब उसके बाद ये इन द लास्ट डेकेड और सो, एक्चुअली नॉट डेकेड, कुछ 7-8 साल पहले टीवी कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा
जोर आ गया और ठीक है। जो सिनेमैटिक क्वालिटी है टीवी की वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। उस वजह से जो कनाडा में मोस्टली टीवी का काम बहुत है, फिल्म्स का भी है, बट कंपेयर टू दैट टीवी का बहुत ज़्यादा काम है और वो बड़ा एक रोलिंग सॉर्ट ऑफ बिजनेस है कि आपने एक सीजन करके दिया, यू पिक्ड अप ऑन अनदर टीवी शो, वो बाय द टाइम वो खत्म हुआ तो पहले वाले का सीजन 2 आ गया। सो वो जो एक कंपेरेटिव बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा इनका यहाँ पे चलता रहा। तो आई वर्क विद स्पिन स्पिन वीएफएक्स इन टोरंटो, जहाँ पे टीवी पे काफ़ी काम किया और उनकी मेन स्ट्रीम लिस्ट फीचर्स भी की जिसमें डॉल्फिन टेल थी इनकी और 22 जंप स्ट्रीट थी, फ्लैट लाइनर्स थी। उसके बाद फिर मुझे मैं थोड़ा सा हो रहा था कि अब टीवी पे ज़्यादा हो गया काम, तो आज अबाउट टाइम आई शुड मूव बैक टू फीचर एनिमेशन। तो उस टाइम फिर सोनी ने मुझे ऑफर दी थी, आई मूव टू वैंकूवर। अभी ठीक है। वैंकूवर आ गया था, फिर देन आई वर्कड ऑन स्पाइडरमैन और स्मॉल फुट, एक और मूवी, इनकी 2 एनिमेटेड फीचर्स आई थी 2020 में। तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट आई got done with them and then I joined this new company called Fuse Effects। तो अभी मेरा सिलसिला इनके साथ चल रहा है, मोस्टली टीवी कर रहे हैं आजकल। इनका एक बड़ा अच्छा टीवी शो चल रहा है नेटफ्लिक्स पे, स्नो पियर्सर के नाम से। तो बस ठीक। अभी रिसेंटली वही अभी हम लोगों ने ख़त्म करके उसको अ, अभी थोड़ा सा डाउन टाइम है, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, वरना इट कैन गेट वेरी हेक्टिक बिकॉज यू वर्किंग लाइक 13-14 आवर्स एवरी डे। तो ये मेरा अब तक का सिलसिला है, ये मेरी जर्नी है। ठीक तो है। along the way। हाँ, मैं यही बात हम अभी शुरू में कर रहे थे सेशन स्टार्ट होने से पहले कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्किटेक्चर में था एंड यू डोंट गेट टू लाइक चांस टू वर्क ऑन ड्राइंग्स जी जी एक्सटेंसिवली, जैसे कि फाइन आर्टिस्ट हम करते थे या डिजाइनर्स। जी तो आपने ये बताया कि जो आपके जब आपने स्वाना स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में गए एनिमेशन के लिए, व्हेन यू वर ऑप्टिंग फॉर दैट, तो उन्होंने आपको जी ये कहा कि मतलब आपकी ड्राइंग किस लेवल की है। जी तो जी मैं जी। वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरा पहला सेमेस्टर था और एनिमेशन एंड आर्ट हिस्ट्री की क्लास थी मेरी। तो मैं अंदर गया तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई, मैंने कहा चलो कम से कम ड्राइंग और इन सब चीज़ों से जान छूट गई, अब कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें करेंगे। तो आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज्ड बिकॉज जो पहला लेक्चर था वाज ऑल अबाउट पिकासो एंड रेम्ब्रांट एंड वो। आई लुक्ड अराउंड, आई सेड कि कहीं मैं गलत क्लास में तो नहीं आ गया। तो मैंने प्रोफेसर से पूछा, मैंने कहा भाई ये तो मैं जो करने आया हूँ उससे तो रिलेट करता ही कुछ नहीं है, तो आप ये क्यों पढ़ा रहे हो मुझे। उसने कहा कि आ, आप बाय द टाइम इस सेमेस्टर के एंड पे पहुंचोगे यू विल रियलाइज के एनिमेशन के अंदर फाइन आर्ट्स कितनी ज़्यादा इंटीग्रेटेड है। एंड एग्जैक्टली यही चीज़ हुई, क्योंकि व्हेन आई टुक माय फर्स्ट कैरेक्टर एनिमेशन क्लास तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक वॉक साइकिल एक कैरेक्टर की बनानी है, 2D एनिमेशन की क्लास थी। तो ड्राइंग में बस एवरेज थी मेरी। तो उसने मुझे कहा कि तू तो पास नहीं होगा यहाँ पे, ऐसा करके हमारी जो है ना सैटरडे और संडे मॉर्निंग को फ्री लाइव ड्राइंग सेशंस होते हैं। वैसे तो वो ऑप्शनल है बट इट फॉर यू इट इज अ कंपल्शन दैट यू हैव टू द थ्रू आउट द सेमेस्टर तूने सारे जाके वहाँ पे सेशंस करने हैं। एंड इफ आई सी दैट आई इफ आई रियलाइज कि तू इम्प्रूव कर रहा है, देन आई विल लेट यू गो इनटू कैरेक्टर एनिमेशन 2 क्लास। और वो एक्चुअली वाज सो यूजफुल बिकॉज लाइव ड्राइंग करके आप यू start to understand different poses, the anatomy, the balance। और अगर आप वो लाइव ड्राइंग नहीं करते तो it is very very hard for you to be an animator। आप बात कर रहे थे कुछ कैरोस्कूर और इस तरह की टेक्निक्स की भी, जो कि रैम्ब्रांड कैरेट लाइटिंग। कैरेट जी जी रेम्ब्रांट लाइटिंग टेक्निक्स जो है वो, जो उनकी रेम्ब्रांट की पेंटिंग्स जो है वो उनका बहुत ज़्यादा रेफरेंस हमें दिया जाता है इन लाइटिंग डिफरेंट शॉट्स एंड एवरीथिंग। कैरो जो उनकी लाइट एंड शेड एंड शैडो की टेक्निक्स हैं, उसके अंदर फिल्म नॉयर में जो ब्लैक एंड वाइट है उसके अंदर आप बेसिकली देखा जाए तो ब्लैक एंड वाइट एक कलर वैल्यू है दैट गोज फ्रॉम ब्लैक ग्रेज एंड वाइट। बट उसके अंदर सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो फैक्टर होता है वो डेप्थ लाना होता है बिकॉज आपके पास कलर नहीं होता। तो उसमें हम लोगों को वो कैरोस्केरो टेक्निक बहुत ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई कि आपने डेप्थ किस तरह क्रिएट करनी है इफ़ यू हैव नो कलर्स एट ऑल एंड यू जस्ट डीलिंग विद वाइट्स एंड ब्लैक्स। सो दैट वाज ठीक। द फर्स्ट थिंग। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि जैसे कैरेक्टर एनिमेशन की क्लास में अगर वो हमें कोई डायलॉग देते थे कि आप दिस इज द डायलॉग दैट यू हैव टू एनिमेट योर कैरेक्टर टू। तो
सबसे पहले हमें उन्होंने एक असाइनमेंट दी थी विच वाज एक्चुअली प्रीटी इंटरेस्टिंग। आपके जो हाथ होते हैं ना, ये आपके, अगर आप किसी के चेहरे पे हाथ रख दें ना, तो जो आप बात करें ना, जो आपके हाथों की जेस्चर्स हैं, दे से अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उन्होंने हमें ये असाइनमेंट दी कि दिस इज द डायलॉग, और आपने सिर्फ अपने हाथ की मूवमेंट से ड्राइंग करके आपने बताना कि क्या डायलॉग चल रहा है। अगर इफ यू आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, दैट मीन्स मोर देन हाफ ऑफ योर वर्क इज डन। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके पोजेस कैसे हैं, आपका सिलुएट कैसा है, जो आपका डायलॉग जो वो मुंह से बोलेगा, दैट इज द लास्ट थिंग, बिल्कुल आखिरी चीज है, विच इज जस्ट गोइंग टू ऐड आइसिंग ऑन द केक। अगर आप अपनी बॉडी से और अपनी हैंड जेस्चर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, देन यू आर अ सक्सेस। सो इसी तरह लाइटिंग में ये था कि अगर आप ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, देन यू आर अ सक्सेस, बिकॉज व्हेन द कलर एड्स टू इट, तो डेप्थ तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बट ऑलरेडी आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि यू आर इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजिशन टू कम्युनिकेट एंड पुट अक्रॉस योर आइडियाज। इवन कि आप इमेजिन भी उसको 3D में ही कर रहे होंगे ना, उस पूरी चीज बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कर रहे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सही है। हम आपकी जो रील है, शो रील देख लेते हैं, तो उसमें जी जिस तरह जी का काम है, उसमें से जो स्टूडेंट्स देख के पूछना चाहें कि कहाँ पर किस तरह से लाइटिंग में क्या हुआ है, या टेक्सचरिंग या रिगिंग में जी क्या है, जी। तो थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। मैं ये कर लेती हूँ। डेमो रील में आपकी शेयर करती हूँ स्क्रीन के साथ भी। जी। मुझे बताइएगा जब मेरी स्क्रीन पे नजर आ रहा हूँ। जी नजर में। ठीक है, इसको मैं डेमो पे चला देती हूँ।
So that was it. इसमें आसिम आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जो आपकी जो एक फिल्म है उसमें जैसे अगर आप एज ए एनिमेटर काम कर रहे हैं तो उस जी पूरी फिल्म में कितना पोर्शन जो है वो आपको इंडिविजुअली असाइन किया जाता है? um, होता इस तरह है कि यूजुअली एनिमेटेड फीचर में 1200 से 1600 शॉट्स होते हैं। अब ठीक है। वो शॉट्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सीक्वेंसेस, ठीक है। कि ये आउटडोर का फलानी चीज़ का सीक्वेंस है, ये इंडोर ड्राइंग रूम का सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ये बाहर ट्रैफिक का सीक्वेंस है। तो उस स्टोरी टेलिंग में उस सीक्वेंस में सर्टेन अमाउंट ऑफ शॉट्स होते हैं। तो हम लोगों के यूजुअली थोड़ा सा जनरली पैटर्न एक ही होता है, बट बिकॉज सोनी वाज अ बिगर कंपनी या फ्रेम स्टोर वाज अ बिगर स्टूडियो, तो उसमें ये हुआ था कि 4 बेसिक टीम्स बन जाती थी एंड देन दे असाइन यू सर्टेन नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। से अगर आपके 1600 शॉट्स हैं तो उसकी सीक्वेंसेस होंगी 60 सीक्वेंसेस होंगी, तो ठीक है। 15 सीक्वेंसेस हर एक टीम को दे देते हैं एंड देन बेस्ड ऑफ दैट आपको वो असाइन करते हैं शॉट्स। अब ठीक है। मैं अगर एक टीम में 20 बंदे हैं तो बेस्ड ऑफ दैट अगर आपके फर्ज करें 300 शॉट्स आपके हिस्से में आए हैं तो वो डिवाइडेड अप बिटवीन द आर्टिस्ट। ठीक है। और आप कलेक्टिवली भी उस पे काम कर रहे होते हैं, जो शेयरिंग हो रही होती है कंप्यूटर पे, कई ऐसे भी होता है विजुलाइज करते हुए, या इंडिविजुअली अपने ही कंप्यूटर्स पे आप काम कर रहे होते हैं? उसका होता ये है कंटिन्यूटी लाने के लिए। ठीक है। अब जैसे एक सीक्वेंस में फर्ज करें 100 शॉट्स हैं, अब उनमें से 20 शॉट्स मेरे पास है, 20 दूसरे आर्टिस्ट के पास है, 20 तीसरे आर्टिस्ट के पास है। तो ठीक है। हम लोगों को मिलती हैं कलर कीज। कलर ठीक है। कीज कलर की इज बेसिकली अ प्री विजुअलाइजेशन एंड अ कॉन्सेप्ट कि आपका इस सीक्वेंस का एक मूड कैसा होगा, ठीक उसकी है। कलर पैलेट कैसी होगी, उसका मूड कैसा होगा, और उसकी एक जो शॉट है, जो मास्टर शॉट है, उसकी एक्चुअली पूरी डिजिटल पेंटिंग बनती है। तो ठीक है। वो डिजिटल पेंटिंग जो है वो हम लोगों का रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसमें हमें पता हो कि अच्छा यहाँ से की लाइट आ रही है, यहाँ पे ये एक आग जल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आग की लाइट यहाँ से आ रही है, ये इस साइड से मून लाइट आ रही है, और ये वहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लाइट्स लगी है। सो वी गेट एन आइडिया कि उस पूरे सीक्वेंस में और सीन में लाइट सोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं, और ठीक है। आपकी कलर पैलेट कौन सी है, और उस लिहाज से फिर यू गेट इनटू द मास्टर शॉट्स। और फिर जब मास्टर शॉट की लाइट रिग बन जाती है तो दैट गेट्स पास ओवर टू अदर आर्टिस्ट कि जी ये आपकी मास्टर रिग है, आपने अपने शॉट्स में इसको लगाना है। एंड बेस्ड ऑफ दैट अगर आपका कैमरा एंगल थोड़ा डिफरेंट है तो आप उसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपका जो जिस्ट है और एक जनरल लाइटिंग मूड है वो चेंज ना हो। आप इसके लिए क्या कोई 3D मॉडल भी क्रिएट करते हैं कि अगर आपका कोई खास सेट है उसके मुताबिक आपने लाइट अपने एनिमेशन में या वहाँ उसके मुताबिक या लाइव फुटेज के साथ सेट करते हुए लगानी है, तो उसके लिए कोई मॉडल 3D मॉडल कोई रेफरेंस होता है, मतलब जो एक्चुअली रियल लाइफ मॉडल जो बनाते हैं छोटे डमीज से? अच्छा, ये होती है 2 डिफरेंट चीजें। अब आप ठीक। हम बात कर रहे हैं एनिमेटेड फीचर विच इज टोटली एनिमेशन बेस्ड, लाइक अच्छा। टोटली सीजी क्रिएटेड, एंड ठीक देन है। लाइव एक्शन जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसमें सीजी इंटीग्रेशन होती है लाइव एक्शन के साथ। तो उसका मैं आपको बता देता हूँ। होता ये है कि हमारे पास जब शूट होके प्लेट्स आती हैं, प्लेट्स एज इन जो नेगेटिव का पॉजिटिव बन के आता है, और अब आजकल डिजिटल प्लेट्स जो आ रही हैं, डिजिटल पे शूट कर रहे हैं आजकल ये, वो जब ठीक हमारे है। पास आती हैं तो वो यूजुअली ग्रीन के ऊपर शूट हुए होते हैं, ग्रीन स्क्रीन पे लगी होती है पीछे। तो अब जब हमारे स्टूडियो में आते हैं तो हमारा काम ये होता है कि हमने उसका ग्रीन रिमूव करके क्लाइंट के दिए हुए रेफरेंसेस की, वो कहते हैं कि जी यहाँ पे आपने 100 मंजिला एक बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आर्ट हमारे पास आ जाता है, और ठीक है। उस बिल्डिंग का एक लुक एंड फील आ जाती है। क्योंकि कॉन्सेप्ट डिपार्टमेंट जो है उसका काम ये होता है कि उन्होंने ये सिर्फ ये डिज़ाइन करना है कि अगर कैरेक्टर है तो वो कैसा लगेगा, अगर बिल्डिंग है और एक एनवायरनमेंट है तो वो कैसा लगेगा। तो वो फिर सीजी आर्टिस्ट के पास जाता है, मॉडलर्स के पास। यानी हम आई वाज पार्ट ऑफ द मॉडलिंग, ऑफन टाइम्स आई एम पार्ट ऑफ द मॉडलिंग टीम। तो हम लोगों को पता होता है कि ये मॉडल है। उसके बाद मॉडल बनाने के बाद वी गो इनटू द टेक्सचर्स।
टेक्सचर्स कि उसके बाद टेक्सचर्स क्या आएंगे, उसमें भी क्लाइंट का कॉन्सेंट होता है कि आपको किस किस्म के टेक्सचर्स चाहिए। अक्सर औकात ये होता है कि आप उनको बना के भेजते हैं तो दे लाइक इसको इस तरह कर दें, इस तरह कर दें, बिकॉज जो 2D कॉन्सेप्चुलाइजेशन होती है जब वो 3D में आती है तो उसमें थोड़ा सा कभी कभार ऑफ्टन टाइम्स इट वर्क्स आउट, बट अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा 3D में वी डिडंट रियलाइज कि ये इस तरह का होगा तो हम इसको इस तरह करके देखते हैं। तो देन यू गो बैक एंड फोर्थ विद क्लाइंट एंड मेक श्योर कि आप उनके हिसाब से जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आप पूरी कर रहे हैं कि नहीं। तो वंस दैट गेट्स अप्रूव्ड तो यू गो इनटू लुक डेवलपमेंट के लुक डेवलपमेंट क्या चाहिए, बाहर कंक्रीट होगा, बाहर उसका मेटल लगा होगा या ग्लास की बिल्डिंग होगी या किस टाइप की होगी। जब वो हो जाती है तो देन उसको आप शॉर्ट्स में लेके आते हैं एंड देन यू स्टार्ट लाइटिंग देम। ठीक है, ठीक है, सही है। और फिर ये आपके काम के अंदर कंपोजिटिंग भी थी काफी ना, मतलब डिफरेंट लेयर्स जी। पे। मैं ये पूछना चाहती कि आप कंपोजिटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं? या तो माया या 3D X है, मैक्स वगैरह है, आप क्या यूज कर रहे होते हैं? Compositing basically is a 2D production technique. Maya और 3D Max और Blender वगैरह जितने हैं those are 3D based applications. तो जब हम लोग माया यूज करते हैं उसके अंदर 3D जब मॉडल बन जाता है, जैसे आप अभी कह रही थी कि हमने मॉडल उसमें बनाया, हमने उसको अप्रूव करा के क्लाइंट से हमने लाइटिंग की, तो जब वो लाइटिंग हो गई और हमने उसको रेंडर कर लिया तो होता ये है कि वो सारे जो रेंडरिंग होती है वो डिफरेंट पासेस में डिवाइडेड होती है। अब पासेस क्या चीज होते हैं कि मिसाल के तौर पे आपने फॉर एग्जांपल एक सफियर है, बड़ा कुछ शाइनी सा सफियर है, उसका एक डिफ्यूज पास होता है, फिर उसका एक स्पेक्युलर पास होता है, फिर ठीक उसका है। एक शैडो पास होता है, फिर आपका एक रिफ्लेक्शन होता है कि उसके एनवायरनमेंट में क्या चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कंपोजिटिंग एग्जैक्ट। ये करती है कि ये सारी रेंडर लेयर्स जब उनके पास जाती हैं दे ओपन अप एवरीथिंग, वो उन ठीक सारी लेयर्स को ओपन अप करके जो बैकग्राउंड प्लेट है जो उन्होंने शूट की हुई है वहां पे ऑन साइट वो पीछे लगाते हैं, और उसके बाद ये जो सीजी रेंडर्स हैं उनको डिफरेंट पासेस के साथ इंटीग्रेट करते हैं ताकि वो लगे कि जैसे वो एक सीमलेस सा एक इमेज है। ठीक। बल्कि वो डेमो रील में आपने देखा होगा फिफ्थ वेव शुरू में ही है, उसमें डिफरेंट जो वो स्लाइड होके वो चीजें आ रही हैं तो उसमें आप देखेंगे कि वो खाली हाँ, प्लेट। जी। उसको तो शेयर कर दो यहाँ पे, दिखा रहे, देख हम देख लेते हैं। मैंने तो नोटिस किया था, बाकियों ने शायद नोटिस किया ही नहीं। उसको देख लेते हैं। बाकी इसमें 2-3 लेयर्स बन के आ रही थी कि उसको कैसे डिवाइड किया हुआ था। जी जी। जी का अब ये, हाँ जी, ये ये पीछे। वाला क्वेश्चन था, जी। इसमें था या इससे आगे? पीछे इसके और पीछे जाइए और पीछे, और ये इस वाले क्लिप में था, हाँ, अगर आप शुरू में जाए हाँ, इसमें तो। पूरे पे चले जाते हैं, जी फिर यहाँ से चले जाते हैं। जी। लेट्स सी। ये वाले जो पासेस हो रहे जी हैं। जी, ये सारी सीजी इंटीग्रेशन है। तो ये जब सारी चीजें उसके पास चली जाती हैं कंपोजिटर के पास, तो वो उसको इंटीग्रेट करते हैं कि ताकि लगे कि जैसे ये दिस वन इज टोटली सीजी शॉट, जो शिप वाला था वो पूरे का पूरा सीजी था। अच्छा, शिप वाला जो है, जी। तो ये वाला। अच्छा, दैट दिस इज ऑल सीजी, क्योंकि ये शिप भी सीजी में हुआ था, ठीक मॉडल है। किया था, उसके बाद उसकी लोग डेवलपमेंट थी, तो पार्टिकल इफेक्ट्स वालों ने पानी का किया था, तो फिर उन दोनों को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था फिर। इंटीग्रेट किया, ठीक है, ठीक है। इसमें अब जो लाइटिंग है वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, मतलब जी एम्बियंट जी, लाइटिंग होगी या बाकी डिफरेंट तरह की वॉल्यूमेट्रिक है, डिफरेंट तरह बिल्कुल। की लाइटिंग हुई हुई है। अ, ये वाला पोर्शन जो आप देखिए, जो जी, आप ये उन्होंने ग्रीन पे शूट किया था, तो ग्रीन हमने रिमूव किया, उसको कलर करेक्ट किया, कलर करेक्ट करने के बाद उसके अंदर जो सीजी मॉडल था वो इंटीग्रेट किया जिसके ऊपर टेक्सचर्स थे। ये हमारे पास प्लेट जो आई थी वो इस तरह आई थी, ये ये इस वाली तरह। ग्रीन, ठीक जी, है, ग्रीन में आई थी। तो ठीक ये जो ग्रीन के ऊपर आपको छोटे छोटे प्लस नजर आ रहे होंगे, दोज आर द जी, ट्रैकिंग पॉइंट्स। ठीक वो है।
ट्रैकिंग पॉइंट्स उनका मकसद ये था कि हम अपना सीजी कैमरा जो ऑन साइट कैमरा उसके साथ किस तरह इंटीग्रेट करेंगे और बिल्कुल। उसको मैच कैसे करेंगे। जब वो ठीक है। कैमरा लेआउट में मैच हो गया तो उसके बाद हम लोगों ने मॉडल्स बनाने शुरू किए और ये मॉडल्स जो बना 3D है, जी जी ये ये जो सारा आपको ग्रीन, हाँ, ये जो आपको टेक्सचर्ड वॉल्स नजर आ रही हैं और ये नीचे जी का एरिया सारा। ये सब सीजी में बना, उसका टेक्सचर्स हुए, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब लोग डेवलपमेंट हो गई, तो ठीक है। ये उसमें ये बना। ठीक है। अब जी ठीक है। इसमें भी लाइटिंग डिफरेंट टाइप की है नीचे। जी वो डिपेंड करता है कि ऑन साइट उनकी क्या लाइटिंग थी सेट के ऊपर, तो यूजुअली हमें मैच उस पे करना पड़ता है ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्योंकि अब ये रेड देखिए, हाँ, ये जो इसके हेड पे जैसे लाइट आ रही है, यूं लग रहा है कि जैसे नीचे या फ्रंट से ही कुछ आ रही है, तो इसका मतलब है कि जहाँ जी ग्रीन स्क्रीन थी बिल्कुल वहां पे भी लेट इस तरह किया गया है ताकि उसके साथ मैच कर जाए जैसे सीन में ही बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल। अब जैसे उसके सर पे जो लाइट आ रही है वो कोई ऊपर से लाइट उन्होंने लगाई होगी, बिल्कुल। और हम उन्होंने हमें एक रिफ्लेक्शन, एक स्फीयर रिफ्लेक्शन बॉल होता है वो हमें ठीक। वो ऑन साइट वो दे देते हैं। उसमें रिफ्लेक्शन बॉल में जो एक्चुअल लाइट सोर्स ऑन सेट होते हैं वो हमें पता लग जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये लाइट है, यहाँ से एक छोटी लाइट इधर से आ रही है, एक और लाइट सोर्स इधर से आ रहा है, तो ताकि हम जब सीजी में लेके आए तो हम उसको आराम से अपनी लाइट मैच कर सकें ताकि वो सीमलेस लगे। ठीक है। ठीक है। जो नेक्स्ट सीन है वो भी तकरीबन ऐसे ही जा रहा है, ये वाला जो है। ये जो था, अगर आप यहाँ पे रोकें इसको, तो ये जो है पूरा, दिस वाज द एंटायर सिटी दैट वी हैड टू क्रिएट। ये इटली का कौन सा शहर है ये? रोम डेल है या फ्लोरेंस है? फ्लोरेंस है, आई थिंक फ्लोरेंस है ये। फ्लोरेंस यहाँ होगा। जी जी। तो ये अब पूरी हमने सिटी बनानी थी। अब वो थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि गिवन द काइंड ऑफ टाइमलाइंस दैट वी हैड, तो उसमें बनाना मुश्किल था। तो ये एक्चुअली हमने पूरे का पूरा मॉडल गूगल मैप से उठाया था। अच्छा। अगर आप अच्छा। गूगल मैप्स देखें अभी, तो जो उनका हम्म। नया में आपको 3D फील आती है, आप उसकी ठीक। सोर्स फाइल में जाएं तो आप एक्चुअली उनका 3D मॉडल उठा सकते हैं। वो बड़ा अच्छा। बेसिक होता है, उसमें यह है कि सिर्फ 60% काम हुआ होता है, आपको बस उसको थोड़ा क्लीन अप करके और डिटेल ऐड करनी होती है। तो वो हमने यहाँ से पूरा वो किया था उसका। और ये डुओमो जो है उसको हमने डिटेल आउट किया था बिकॉज दैट वाज द मेन फोकस ऑफ द शॉट। तो ठीक है। वो सीजी इंटीग्रेशन सारी हमने फिर उसके साथ की थी स्मॉटली। ये फिर लाइटिंग है अभी। अच्छा, ये लुक, ये क्या वर्ड है? डेव टी, टी ये क्या लुक वर्ड? लुक डेवलपमेंट जो है, अच्छा। बेसिकली लुक डेवलपमेंट ये चीज होती है कि आपने बना तो लिया मॉडल, जी। अब आप चाह रहे हैं कि जी ये जो मेटल की शीट है उसके ऊपर यहाँ पे इतनी थोड़ी सी जगह पे रंग उतरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा रस्टी है नीचे से। तो लुक ठीक। डेवलपर का काम ये होता है कि वो उसने हर एक मटेरियल की, हर एक टेक्सचर की वो फील लेके आनी है जो कि अंडर लाइट सही तरीके से फिजिकल वर्ल्ड वो करेक्टली रिएक्ट करे। अगर ठीक है। मेटल है तो उसकी शाइनीनेस कितनी परसेंट होनी चाहिए, अगर रस्ट है तो वो कितना परसेंट रस्ट आना चाहिए कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ इरोजन इट इज गिविंग यू। तो लुक डेवलपर का काम ये होता है कि उसने मेक श्योर ये करना है कि सारे जो भी मटेरियल्स हैं, ग्लास है, वाटर है, मेटल है, वुड है, वो फिजिकल लाइट के अंडर कितना एक्यूरेटली रिएक्ट करे टू द सीजी लाइटिंग। ठीक है। अच्छा, आसन, इसमें एक बहुत चीज जो अच्छी नजर आ रही है मुझे, एक और जो लिंक आपके आर्किटेक्चर के साथ नजर आ रहा है, जो जी जी आर्किटेक्चर आप निकालते हैं और काफी हद तक उसमें टेक्सचर भी होता है और बाकी चीजें भी जो आप कर रहे होते हैं, और जिस बिल्कुल सब ऐसा ही है ना, बिल्कुल वॉल्यूम और जो भी चीज आ रही है वो भी आपका ट्रांसलेट। हाँ, वही मैं पूछना चाहती थी कि आर्किटेक्चर, जो आपका बैकग्राउंड है, आर्किटेक्चरल बैकग्राउंड, वो कितनी हद तक आपका फिल्म या इसमें आपको हेल्प करता है, जो आपको लगता है कि है इतना पार्ट भी। बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ये मजे की बात यह है कि आप अगर आर्किटेक्चर को एक तरह से देखें तो आर्किटेक्चर आल्सो डील्स विद 3D स्पेस एंड लाइट्स। हम्म। और हम लोग भी बिल्कुल 3D स्पेस एंड लाइट्स, और एक्चुअली द रीजन व्हाई 3D में जाने का मेरा जो रूट था, वो अगर आर्किटेक्चर प्रॉब्लम मैंने ना पढ़ा होता तो शायद मैं इस साइड पे आता ही ना। बिकॉज आपको जैसे पता ही होगा कि हम्म। एनसीए में हमें 3D मॉडल्स वो बनवाते थे और हमें कहते थे कि जी अब ये आपने बिल्डिंग बनाई है तो इसका 3D मॉडल बनाए। तो एक्चुअली वो सारा प्रोसेस वहां से शुरू हुआ। एंड हाँ। और सारे लाइटिंग टेक्निक्स, और एक्चुअली वो आपको हेल्प इस तरह करते हैं बिकॉज आप बीइंग एन आर्किटेक्ट आप फिजिकल लाइट्स एक्सपीरियंस करते हैं।
कि आपको पता है कि यहाँ से अगर ये लाइट सोर्स इधर से आएगा तो लाइट बाउंस होकर इधर जा रही है, तो हमें यहाँ भी एग्जैक्टली। पास में खिड़की देनी है। तो वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है एक्चुअली। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मुझे याद है आसिम, जब आप अपना थीसिस कर रहे थे तो मेरे ख्याल में कि आपने कंप्यूटर जनरेटेड चीजें ज्यादा इस्तेमाल की हैं, जो जी उस जी वक्त तो बहुत नई चीज थी ये, मैं हमें एनसीए में भी जब जी जी आपने ये बिल्कुल किया उस वक्त ना, तो मेरे ख्याल में वो भी एक जो वर्चुअल स्पेस के अंदर जो एक फील होती है, उसके अंदर मूव अराउंड करना, बाकी मुझे लगता है वो भी आपको किसी हद तक फैसिनेट किया, जो कि मुझे एक्चुअली उसी एनिमेशन। ने ही फैसिनेट किया, तो मैं उस साइड पे चला गया, वरना यानी कि ये चीज इतनी नई थी उस टाइम पे कि मैं वाले साहब से बात कर रहा था, तो उनका ख्याल था मैं आर्किटेक्चर में मास्टर्स करने जा रहा हूँ, तो मैंने उनको कहा कि जी मैं ये कर रहा हूँ। कहा, भाई ये क्या चीज है तुम करने जा रहे हो? तो वो बिल्कुल जो थी वो आप सही कह रही है, बहुत नई थी उस टाइम पे। बिल्कुल ऐसे तो ही है। और वही ना कि उसकी वर्चुअल स्पेस, क्योंकि आप तो एक्चुअल रियल स्पेस में काम करते हैं जो जी आर्किटेक्चर जी के लोग हैं, फिर वर्चुअल स्पेस में जाना और उसके अंदर मतलब आप फ्लाई अराउंड ही करना शुरू कर देते हैं ना, जब आप पूरी में बिल्कुल बिल्कुल उड़ते हुए देख रहे होते हैं उसको, उसके हर बिल्कुल तरफ ऐसे से ही है। मार के देख रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज जो है वो बहुत हद तक जो है वो आपकी इन्फ्लुएंस करती है इस चीज को। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लाइट का पूरी डायमेंशन आपको पता होती है कि लाइट कहाँ से आनी चाहिए रूम्स के अंदर, या किस बिल्कुल तरफ से बिल्कुल फॉल कर रही है, ये तो बहुत पार्ट है उसका। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। इस पे लाइटिंग में, कंपोजिटिंग में हमने देखा है, टेक्सचरिंग है, बाकी चीजें जो कि आपने काफी काम किया, लाइटिंग ही ज्यादा आपने काम किया जो कि आपकी स्पेशलिटी है उसके बीच जी में, जो कि हमें नजर आ रही है। विजुअल इफेक्ट्स के बीच में जो डिफरेंट तरह के हैं, अब जैसे ये अब ये लेग्स का है, ये बाकी जी इस तरह का जो विजुअल इफेक्ट्स का पार्ट है आपका, जी वो कितनी हद तक आप समझते हैं कि काफी, ये वाला पोर्शन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, ये ये आई जो रोबोट का शॉट था जी ये। आई रोबोट का, मतलब ये जी तो बहुत ही अमेजिंग है जिस तरह से ये जा रहा है, और उसकी जो डिटेल्स हैं और जी बाकी। इस पे काम उन्होंने काफी किया था। एक्चुअली डिपेंड ये भी करता है कि हर एक फिल्म का बजट कितना है। तो बिल्कुल। इस फिल्म का ये काफी हाई बजट मूवी थी, तो हम्म। इसलिए ऑब्वियसली जो द मोर बजट यू हैव द बेटर एंड द मोर डिटेल्ड थिंग्स यू कम अप विद। और टाइम फैक्टर भी ये था कि काफी था हम लोगों के पास इधर, तो इस पे काफी ज्यादा काम होता। तो इसकी जो अंदर की लाइटिंग जो थी, एक्चुअली मैं इस प्रोजेक्ट पे मेनली कैरेक्टर एनिमेटर के तौर पे आया था, जिसमें आप देख रहे हैं तीन तीन रोबोट्स नीचे उतर के आते हैं, तो उनमें से एक अच्छा। दो, उनमें हाँ, दो ये नेक्स्ट कैरेक्टर्स है। हैं वो मैंने ये एनिमेट किए। ये अच्छा। ये सेंटर वाला और एक उसके पीछे वाला, तो ये अच्छा, वाले मेरे शॉट्स थे। और रिगिंग भी है इसमें आपकी, या लाइटिंग ही है इसमें? लाइटिंग आपने शेयर किया? इसमें मेरी एनिमेशन है और लाइटिंग है इसके अंदर। अच्छा जो ठीक है। जिसमें वो लेटा हुआ है रोबोट, उसकी लाइटिंग मैंने की थी, और ये इन दो रोबोट्स की कैरेक्टर एनिमेशन मैंने की थी। अच्छा रिगिंग ठीक। इसकी मैंने नहीं की थी बिकॉज इसकी रिग जो थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, तो इसके लिए बड़े स्पेशलाइज्ड रिगिंग आर्टिस्ट थे इनके पास। ठीक है, तो क्योंकि रोबोटिक मूवमेंट्स हैं ये बीच में, बिल्कुल ऐसे रोबोटिक ही। मूवमेंट्स हैं, साथ में रोबोटिक मूवमेंट्स के साथ थोड़ी सी इलास्टिक मूवमेंट्स भी हैं। अगर आप उनकी ये बाजू देखें, तो इसके लिए उनके पास पूरी एक प्रोग्रामर्स की टीम थी जिन्होंने इन हाउस अच्छा। वो रखे थे, कोड्स लिखे थे और प्लगइन्स लिखे थे जो ओ कि अच्छा। रिगिंग के अंदर वो इंटीग्रेट हो सकते थे। तो ठीक। बेसिकली वो प्रोग्रामर्स एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे, वो जो उनका R&D का जो डिपार्टमेंट था, वहां पे इसकी रिग सारी डेवलप हुई थी। ठीक है आसिम, जो आप लाइटिंग करते हैं उसमें भी किसी जगह पे ऐसा होता है कि कहीं आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ जाए खास स्पेशलाइज लाइटिंग करने के लिए, ऐसा होता है? um, लाइटिंग में जरूरत पड़ जाती है, अक्सर औकात नहीं होती, बट लाइटिंग में जब एक्चुअली जो आपकी प्रोडक्शन पाइपलाइन है ठीक है। उसको बनाना एक स्मूथली, वो बड़ा जरूरी काम है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पूरा एक आईटी का डिपार्टमेंट है, के अंदर प्रोग्रामर्स हैं जो कि पूरी एक पाइपलाइन लिखते हैं, एज इन वो पूरे प्लगइन्स और कोड्स लिखते हैं जो कि हेल्प करते हैं कि सीमलेसली फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट आपकी चीजें पहुंच जाएं और वो वर्केबल हों। तो वहां पे उनकी जरूरत पड़ती है, वरना लाइटिंग के अंदर थोड़े से प्लगइन्स हमें मिलते हैं जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने, फॉर एग्जांपल फ्लैट लाइनर्स का एक शॉट है, इस शोरील में भी है, जिसके अंदर उनको एक प्लगइन लिखना पड़ा था क्योंकि वो शॉट बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था और वो रेंडर नहीं हो रहा था। और अगर आप उसको लो क्वालिटी पे करते थे तो वो उसकी वो एक्चुअल फील नहीं आती थी उसमें। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है उसमें, यह कि अगर एक लाइट सोर्स
एक आ रहा है, फर्स्ट करें सूरज आ रहा है एक ऊपर से रूफ में से, तो वो एक लाइट सोर्स जो है वो बाउंस अराउंड करके कितनी जगहों पे एनवायरनमेंट के अंदर अफेक्ट करेगा। क्योंकि नेचुरली जो आपके लाइट बाउंसेस होते हैं इन द रियल वर्ल्ड वो अब तकरीबन 24 to 25 होते हैं, वो तो खैर वैसे ही नेचुरल लाइट के बाउंसेस होते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक सेफ लाइट बाउंसेस कैलकुलेट करना होता है 2 या 3। अगर आप 23-24 लाइट बाउंसेस पे जाएं विच इज फिजिकली करेक्ट इन द रियल वर्ल्ड, तो वो फिर कंप्यूटर पागल हो जाता है, वो कहता है भाई ये मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा काम है। ठीक है। तो उसके लिए फिर इनको प्लगइन लिखने पड़े जिन पे इनको लाइट फेक करनी पड़ी कि असल में तो 2 ही हिट हो रही हैं, लेकिन उन्होंने शो ऐसे करना कि जैसे 2 के बजाय 6 हिट हो रही हैं या 4 लाइट रेस हिट हो रही हैं। तो वहां पे प्रोग्रामर्स हैड टू जंप इन टू मेक श्योर कि हम वो इफेक्ट भी दे दें और कंप्यूटर पे बोझ भी ना पड़े। तो ऐसे अक्सर मसले आ जाते हैं प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। इसमें से हमने काफी हद तक तो पोर्शन देख लिया है। जी गर्ल्स, आप में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप करते हैं एनिमेशन या जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं आगे और वो देख रहे हैं कि किस किस तरह की चीजें हैं, इसमें ऑप्शंस हैं, सर का काम भी आप देख रहे हैं जो कि जाहिर है कि हॉलीवुड सिनेमा या बाकी उसमें भी मतलब जो हाईएस्ट तरीन क्वालिटी है उसके ऊपर जा रहा है, तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं। यस, जो शो रील है उसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक्चुअली तो मेरा तो स्टार्ट है, लाइक हमारा सेमेस्टर अभी 4th है, तो अभी हमने एनिमेशन का बिल्कुल बिगनिंग अभी हम फोटोशॉप और इस तरह का स्टार्ट किए। तो मुझे जस्ट ये करना है, क्वेश्चन अभी करना है, क्योंकि मुझे इतना तो नहीं पता, अभी आगे जाके सीखेंगे तब ज्यादा नॉलेज आती है। जी तो एनिमेशन के लिए मतलब क्या चीज होना मतलब मस्ट है कि आप एक परफेक्ट एनिमेटर बन सकते हो, तो उसके लिए क्या चीज होना लाजमी है? देखो, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि आपकी ड्राइंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अगर बहुत सुपर भी ना हो बट एटलीस्ट इतने हो कि आपको एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सेंस ऑफ बैलेंस, बिकॉज एनिमेशन इज ऑल अबाउट मेकिंग योर कैरेक्टर्स एनिमेट, और आपने आपने एक इम्प्रेशन देना होता है कि वो एक्ट आउट कर रहे हैं। तो आपको एक बॉडी लैंग्वेज का, एक उनके जेस्चर्स का पता होना जो है ना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए लाइफ ड्राइंग जो है एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आप लाइफ ड्राइंग नहीं कर रहे तो आप लाइफ ड्राइंग शुरू कर दो, या आप कैरेक्टर पोजेस वगैरह, बहुत सारे रेफरेंसेस ऑनलाइन हैं जो आपको मिल जाएंगे। कैरेक्टर पोज किस तरह करना है, डिफरेंट कैरेक्टर बॉडी मूवमेंट्स किस किस तरह की होनी चाहिए, आपका बैलेंस किस तरह का होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और एक जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे हो जाओगे। इट इट रियली इज एक्चुअली अबाउट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू डू द बेटर यू गेट। तीसरी बात ये, मेरा कैरेक्टर एनिमेशन का प्रोफेसर थे, वो हर रोज आके, जब भी हमारी क्लास होती थी सुबह, वो आके मुझसे पूछता था, मिस्टर खान आर यू हैविंग फन? तो वो रोज ही मुझसे पूछता था। मैंने इससे पूछा, मैं कभी तू क्यों पूछता मेरे से कि आर यू हैविंग फन? कहता, इफ यू नॉट एंजॉयिंग कैरेक्टर एनिमेशन यू कैन नॉट डू कैरेक्टर एनिमेशन, सो इट इज एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर तो आप एंजॉय कर रहे हो तो देन यू विल ग्रो। अगर आपको लगेगा कि यार किस मुसीबत में मैं पड़ गया हूँ, देन यू शुडंट डू इट। तो वो मेरे एक ख्याल में ये वैसे भी बहुत ही मतलब लेबोरियस किस्म का काम है, इतना आसान काम नहीं है बहुत एनिमेटर बनना। बहुत लेबोरियस काम है। और मैं अक्सर औकात जब हम लोगों के क्रंच टाइम पे शॉर्ट शोज जब रिलीज डेट के करीब होते हैं, तो वी आर एक्चुअली वर्किंग 14-16 आवर्स अ डे। तो इट इज वेरी लेबर इंटेंसिव, बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव काम है ये ठीक कह रही बिल्कुल है। ऐसे। बिल्कुल, यानी कि आप इसके लिए रेडी रहें फिर अगर आपने ये ऑप्ट करना है, तो ये नहीं है कि आपने आखिरी रात में काम किया और काम खत्म हो गया। इट बिल्कुल, वोंट बी ये लाइक वो दैट। वाला काम नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम मैंने अपना कोर्स में रजिस्टर किया था, तो मेरे साथ थे 37 लड़के। बाय द टाइम हमने ग्रेजुएट किया था तो 15 के 16 लोग रह गए थे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल सेड कि ये हमारा टेम्परामेंट नहीं है। बिल्कुल यही बात है, टेम्परामेंट रिक्वायर्ड है एक खास जी तरह का, ऑन अ बिल्कुल, स्ट्रेच आप बहुत घंटे बैठ सके और आप मतलब आपकी बॉडी जो है ना उसमें फोकस फिर कर सके स्टेमिना बिल्कुल। चाहिए भी आपको। हाँ, ये भी चाहिए आपको।
और ये वाला मसला है। इसलिए ये बिल्कुल मेजर जो चीजें उन्होंने आपको बताई हैं कि आपको ह्यूमन प्रोपोर्शंस और जेस्चर्स और इन चीज का होना तो डेफिनेट है, ये नहीं है ड्राइंग के बगैर तो एनिमेशन की कोई तुक ही नहीं है। और दूसरा जो आपका तरीका है कि आप इतनी लेबोरियस काम कर सकते हैं और मतलब आपका टेम्परामेंट है कि नहीं है, अगर नहीं है तो यू कांट ऑप्ट फॉर दैट, आपको छोड़ना ही पड़ेगा उसको फिर। बिल्कुल, आप फिर दूसरी साइड पे आ जाएं, ग्राफिक साइड पे, मतलब जिस जहाँ पे भी हाँ, आपको लगता है आपका पोटेंशियल ज्यादा है, आपको बिल्कुल बनता है। बिल्कुल। और क्वेश्चन करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मैं एनिमेशन की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ग्राफिक्स की स्टूडेंट हूँ। जी, बट हम ग्राफिक्स में ऐसा होता है कि हमने अपने काम के लिए अपने आप को मोटिवेट करना होता है अपनी सराउंडिंग से, कि हम अपनी सही है, सराउंडिंग या आइडियाज़ को लेते हैं और अपने आप को मोटिवेट करते हैं। ठीक है। बट एनिमेशंस में भी इसी तरह ही होता है कि यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। क्या आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे तो तभी हम इस तरह कैरेक्टर्स अपने बना सकते हैं, या फिर हम अपनी कैरेक्टर्स को अपने सराउंडिंग से रिलेट कर सकते हैं। ये बड़ा मजे का सवाल है एक्चुअली। ये बिल्कुल ठीक बात है, आपको अपना इंस्पिरेशन लेने के लिए इंस्पिरेशन देखो कहीं से भी आ सकती है। आप अगर ऑफन टाइम्स ये होता है कि इवन प्रोजेक्ट्स में जब आप कोई कैरेक्टर डिज़ाइन आप कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप एक कैरेक्टर डिज़ाइन करें, आपसे नहीं हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रही कि मुझे किस साइड पे जाना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए कैरेक्टर्स, अदर देन द फैक्ट कि आप रेफरेंसेस देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ये होता है कि आपको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब मज़े की एक बात था, तो मेरा कैरेक्टर एनिमेशन 1 का फाइनल प्रोजेक्ट था, तो उसमें हमें एक शॉर्ट फिल्म बनानी थी। अब मैं बड़ा फंस गया, मुझे समझ ना आया कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ये इस बात नहीं बन रही, वो डिले होता जा रहा था। अब मैं बिल्कुल थक गया हुआ था, एग्जॉस्ट हो गया था। मैंने कहा अब नहीं आ रहा तो क्या करूँगा मैं। खैर मैं निकल गया बाहर, मैंने अपना हेडफोन्स लगाए, गाना शाना लगाया और मैं बाहर वॉक पे निकल गया। समहाउ जिस जहाँ पे मैं वॉक कर रहा था और फिर जो गाना जिस लिहाज से मैं वो सुन रहा था, सडनली द इमेजेस स्टार्ट टू पॉप अप इन माय माइंड कि अच्छा इस गाना, अगर ये गाना एज अ बैकग्राउंड लगा हो तो उसके ऊपर एक्शंस क्या हो सकते हैं। और आप सोच ही सकते हैं कि विद इन जो मैं 3 4 5 दिन से सोच रहा था कि क्या करूं, ये करूं, वो करूं, लिटरली 2 मिनट के अंदर मुझे आइडिया पूरी फिल्म का आ गया, वो पूरी शॉर्ट फिल्म का आइडिया। सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो है वो आपका कहीं से भी आ सकता है, किसी पीस ऑफ म्यूजिक से आ सकता है, किसी पीस ऑफ आर्ट से आ सकता है, किसी पेंटिंग से आ सकता है, नेचर से आ सकता है। तो इसके तो एक इनडेफिनेट सोर्सेज हैं इंस्पिरेशन के। दूसरी बात मैं ये ज़रूर लोगों को कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू स्टे इंस्पायर्ड इन एनिमेशन और इन एनीथिंग, आप लोगों के काम बहुत ज़्यादा देखो और आप अपने से बहुत अच्छे अच्छे लोगों के काम देखो, आपको वो उससे जो पुश एक मिलता है एंड दैट डिजायर टू वर्क बेटर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। हम लोग जो अपनी जो मैं इनको स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ाती हूँ, उसमें एक एक्सरसाइज होती है कि म्यूजिक सुने और उस पर जो विजुअल्स बन रहे हैं उसके बारे में लिखें। तो वो बिल्कुल वाकई आपको बहुत हेल्प करता है विजुलाइज करने में। म्यूजिक बहुत है ना, कि आपको बिल्कुल इंस्पायर करता है। बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, सही कह रही जिस हैं। तरह का म्यूजिक आप सुनते हैं उस तरह से विजुअल्स बनने लग जाते हैं आपके माइंड में, बिल्कुल ऐसा ही है, शुरू हो बिल्कुल। जाती आई है। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और 100% चीज एग्री कहना विद यू। चाह रही थी आसिम, आपने भी कहा ना कि आप गेम डिजाइन में गए और आप फिर ज्यादा आपने फिर फिल्म में ही रहे, तो हमेशा स्टोरी टेलिंग का स्टाइल भी डिफरेंट होता है ना। एनिमेशन में थोड़े से डिफरेंट और पार्ट्स भी आप ले लेते हैं, फिल्म में एक स्टोरी लाइन चलती है, शायद ये भी फर्क पड़ता है कि आप स्टोरी टेलिंग किस तरह की पसंद है, तो फिर आपकी चॉइस शायद एनिमेशन और गेम डिजाइन में डिवाइड हो जाती है कि क्या तरीका बिल्कुल ज्यादा होगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप डिपेंड ये करते हैं कि आप किस टाइप की, किस फॉर्म ऑफ एनिमेशन के अंदर जाना चाहते हैं। गेम डिजाइन हम्म। है, ठीक है। उसमें अब आजकल जो गेम्स आ रही है वो थोड़ी सी स्टोरी बेस्ड हो गई हैं, बट अदर देन दैट हम्म। गेमिंग इज मोस्टली बेस्ड ऑफ के लेवल डिजाइन कैसा होगा, कितने लेवल डिजाइन में डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, कैरेक्टर टाइप्स क्या होंगे। फिल्म मेकिंग इज predominantly a मीडियम ऑफ स्टोरी टेलिंग।
जो कि Exactly. अच्छा मजे की बात है, अब स्टोरी टेलिंग के लिए जरूरी नहीं है कि खाली एनिमेशन हो। स्टोरी टेलिंग के लिए आपकी ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, सीक्वेंस ऑफ ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, आपकी पेंटिंग भी हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं टू टेल यू। लाइक आपने कहा कि म्यूजिक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो बहुत सारे मीडियम हो जी सकते हैं स्टोरी टेलिंग के। तो आपके एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि यस आई एम अ स्टोरी टेलर, आई वांट टू गेट इनटू एनिमेटेड फीचर। अगर मैं थोड़ी सी प्लेफुल, अब अब ये देखें लाइव एक्शन में कंपेयर टू लाइव एक्शन एनिमेटेड फीचर, जो फुली एनिमेटेड फिल्म्स होती हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है कि फुली एनिमेटेड फिल्म, मैं एक और मज़े की बात बताता हूँ। एक और मेरा फाइनल थीसिस का प्रोजेक्ट था, तो हमने आइडियाज़ लेके आने थे। जो मेरा थीसिस एडवाइज़र था, उसके पास मैं आइडियाज़ लेके गया। उसने कहा अच्छा भाई क्या आइडिया? मैंने कहा सर ये मेरा आइडिया, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू एंड दैट्स हाउ द स्टोरी इज़ गोइंग टू गो, ब्ला 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 ब्ला। तो मुझे कहते हैं कि बड़ी अच्छी स्टोरी है। बात यह है कि मुझे को ये बताओ कि अगर तुमने ये सारी स्टोरी बनानी है तो तुम उसको शूट क्यों नहीं कर लेते? वो ऐसी क्या चीज है जो कि तुम एनिमेट करके लोगों को दिखाना चाह रहे हो, जो कि तुम कैमरे में नहीं कर सकते? सो उसने कहा कि एनिमेटेड फीचर का फायदा इस चीज से उठाएं कि आप लोगों को दुनिया का वो डायमेंशन दिखाएं जो कि वो नेकेड आई से नहीं देख सकते। जैसे टॉय स्टोरी हो गई, कि आपने इमेजिन किया कि यार अगर हम जब कमरे से बाहर होते हैं तो हमारे टॉयज शायद जिंदा हो जाते हैं, यू नो दैट्स अ थॉट। सो इस टाइप के आइडियाज, बग्स लाइफ, बग्स के बारे में कि अगर बग्स जिंदा हो तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। सो यहाँ पे स्टोरी टेलिंग जो है ना बहुत ज्यादा आपकी मजेदार हो जाती है कि आप और क्या क्या कर सकते हैं। एंड एनिमेशन ओपन्स अप अ होल वर्ल्ड फॉर यू। आप चाहते हैं कि जी आप ये चीज करना चाहें, वो चीज करना चाहें, आप चूंटियों के बारे में फिल्म बनाना चाहें, आप जाइंट्स के बारे में फिल्म बनाना चाहें जो कि आप नेकेड आई से या फिजिकल वर्ल्ड में नहीं देख सकते, तो इट स्ट्रेचेस योर इमेजिनेशन टू कोर। सो इट्स ऑल अबाउट योर स्टोरी टेलिंग एंड योर इमेजिनेशन। बिल्कुल, ये एक डिबेट चलती है काफी ज्यादा कि रियलिस्टिक अगर बनाना है तो फिर तो रियल लोगों से ही क्यों नहीं करवा लिया जाता, ये भी होता है ना। और कई दफा तो फिल्म्स जी ऐसी हैं जी कि रियल कैरेक्टर्स को, जैसे टॉम हैंक्स या बाकियों ने अगर किया, तो वो जो ट्रेन से रिलेटेड है वो कई ऐसी चीजें हैं जो कि वो शूट नहीं कर सकते थे, वो एनिमेटेड में ही बिल्कुल जाती थी। बिल्कुल तो दे डिड इट लाइक दैट। तो कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए कि वो एनिमेटेड कैरेक्टर बन चुका है, बेशक उसकी उसके ही इमेज लिए गए हैं, सही है। लेकिन वो जी स्टोरी जी टेलिंग ऐसे है कि वो फिर आम तरीके से नहीं शूट होगी, उसके लिए एनिमेटेड बिल्कुल ही होना चाहिए था। या जैसे आप बिल्कुल बच्चों के सही लिए है। स्टोरी टेलिंग करते हैं तो आप उन्हें एनिमल्स के थ्रू या उसके थ्रू स्टोरी सुनाते हैं। एक चीज लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, मतलब मेरी जी तरफ जी से तो लास्ट है, बच्चे पूछ सकते हैं। मोला जी जेट वाली जो फिल्म है, उसमें जी जो आपकी सीक्वेंसेस हैं खास तौर पे, वो किस तरह टाइप के? क्योंकि हमारे पास हमें उस तरह तो पता नहीं है कि कौन से विजुअल्स हैं, कोई आपके पास इमेजेस हैं, या किस तरह की चीज पे आपने काम किया है इसके अंदर? इमेजेस में आपको दिखा नहीं सकता इस वक्त क्योंकि अभी वो रिलीज नहीं हुई, तो मैं अंडर अग्रीमेंट हूँ कि आई कैन नॉट ठीक शो है, एनीथिंग, बट मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या था। ठीक है। जो मौला जेट शूट हुई थी, मौला जेट इज मोस्टली बेस्ड ऑफ दो ट्राइब्स हैं जिनकी लड़ाई चलती रहती है आपस में, जो उनका कैरेक्टर है, और बिल्कुल, गंडासों के साथ और एक्स वगैरह के साथ और कुल्हाड़ों के साथ उनकी लड़ाइयाँ होती हैं। अब जो बिल्कुल। बिलाल ने जब शूट की थी मूवी, तो उसमें यह था कि अगर कोई भी शूटिंग चल रही है लड़ाई का, जैसे उनका हम लोगों ने 3 सीक्वेंस किए थे। एक ढाबा सीक्वेंस था उनका, जहाँ पे एक ढाबे के अंदर मौला जो है वो आता है और वो नूरीनाथ के जो है ना सारे लोगों को मार देता है। तो विच लीड्स टू अ बिगर फाइट अखाड़े के अंदर, डे टाइम ठीक, फाइट, नाइट टाइम फाइट। तो अब जो ठीक। जितनी भी फाइट्स हुई और जितनी भी सीक्वेंस हुई, जो शूट हुआ था वो सारे ये तो कि हमजा और फवाद जो थे वो डंडों से और खाली एक ऐसी चीज से लड़ रहे थे जो जो खाली डंडे थे और जिनके आगे उन्होंने सॉफ्ट बॉल्स वगैरह या कुछ फोम टाइप लगाया था ताकि वो शूटिंग में हर्ट ना हो। अब हम लोगों का काम ये था, जब शॉट्स हमारे पास आए, एक तो हमने 2 चीजें करनी थी। हमने उनके जो गंडासे हैं उनको रिप्लेस करके उनके आगे ब्लेड्स लगाने थे। वो ब्लेड्स लगाने के बाद हमने जो फाइट सीक्वेंस में जितना ब्लड है, अफेक्ट्स हैं कि वो गर्दनें उड़ रही हैं, तो वो उसमें से खून के फवारे निकल रहे हैं, कुल्हाड़े चल रहे हैं, तो मोस्टली जो काम था वो था पार्टिकल इफेक्ट्स का, जिसके अंदर अ लॉट ऑफ ब्लड सिमुलेशन वाज इन्वॉल्व्ड। और उस बेसिकली हम लोगों ने दिखाया था कि कितना ब्रूटल किस्म का फाइट उनका चल रहा है, जिसके अंदर ये सारा उनका ब्लड बाथ है और ये वो है। दूसरी जो सीक्वेंस एक और उनकी थी उसमें ये था कि क्योंकि उनका सेट
लिमिटेड था जो उन्होंने बनाया हुआ था फिजिकल सेट, हम लोगों को करनी थी सेट एक्सटेंशन। मतलब अगर स्क्रीन के ठीक ऊपर है। 8 फुट बाय 10 फुट का एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है, तो हमें जो 8 फुट को है जो वो 100 फुट का बनाना है एक्सपैंड करके, और हमें ऐसे सीमलेसली उसको सेट को एक्सटेंड करना है कि वो लगे कि वो एक बहुत ग्रैंड किस्म के अपने फोर्ट में बैठा हुआ है, या अपने वो सेन में, उनके सेन की भी एक एक्सटेंशन थी। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने की थी उनके साथ। वो जो ग्लैडिएटर टाइप की वो जो उनका वो होता है जहाँ पे वो ठीक था, था। जहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं, और वो हम सीक्वेंस देख रहे थे ना कि जिस जी जी तरह जी उस बिल्कुल। तरह का कुछ था बीच में। वो हाँ एक्चुअली बिल्कुल उस तरह की एक्सटेंशन। वो एक्चुअली डे टाइम फाइट थी, जो ट्रेलर में था मेरे ख्याल है शायद वो डे टाइम शॉट्स थे। उसकी जो रात की जो फाइनल फाइट है जो उनकी, वो बड़ी मजेदार शूट हुई हुई है। तो ट्रेलर में जो थे वो तो मेरे ख्याल है इफेक्ट्स के बगैर ही उसने लगा दिए थे, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रेलर की अपनी रिलीज डेट होती है, तो यू कैन नॉट जस्ट से कि हमारे पास नहीं है, तो यू जस्ट हैव टू रन व्हाटएवर यू हैव। तो उसके बाद उसमें इफेक्ट्स वगैरह, सारे पार्टिकल्स और ये ब्लड सिमुलेशन और ये सब चीजें उसमें इंटीग्रेट की थी हम लोगों ने बाद में। कि फवाद और उसका जो कैरेक्टर है वो भी काफी ज्यादा इंटेंस उसमें दिखा रहे हैं, वो ना जी दोनों का जी जी बहुत है। तो इसलिए जो आप बता रहे हैं ना सीक्वेंस इसमें ब्लड का और बाकी वो जिस तरह से दिखाना है, उनकी जी। एक्सप्रेशंस भी ऐसे ही है, तो बड़ा इंटेंस सीन है। तो बहुत अच्छा बहुत लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि जब वो रिलीज होगी तो फिर हम कहेंगे आसिम से हमने बात की थी और मेरा ख्याल है एनिमेटर से ईद पे रिलीज हो रही है, वो तो बेचारा 2-3 दफा उसको हाँ, आगे। अल्लाह करे हो जाए तो फिर तो हम देखें जरूर उस जी जी मूवी के। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छी ऐसे ही बनाई, है। बहुत अच्छी है, लाइटिंग उसकी बड़ी अच्छी की बेटा है। आपने से कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है इससे? बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। कामरान आचार्य की अच्छी वो होती है, प्रोडक्शंस अच्छी हैं। जी जी, इकरा आपने कुछ पूछना है? मैंने ये पूछना था सर से कि सर आगे फ्यूचर में एनिमेशन और गेम डिज़ाइन इसमें से सबसे ज़्यादा स्कोप क्या हो को किस चीज़ का होगा? क्योंकि मैंने अपने सीनियर से मतलब ऐसे बात की थी, क्योंकि अभी हमने सेलेक्ट करना है नेक्स्ट सेमेस्टर में अपनी स्पेशलाइजेशन। तो शी सेड कि आप गेम डिज़ाइन सेलेक्ट करो, क्योंकि एनिमेशन का डे बाय डे स्कोप बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो 2 साल तक जब आप पास आउट होंगी तो आई थिंक सो कि आपको गेम डिज़ाइन चूज़ करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू मतलब आपकी क्या सजेशन है कि एनिमेशन का ज़्यादा स्कोप हो रहेगा या नहीं? मतलब अब तो है नो डाउट बहुत ज़्यादा उसको स्कोप है, लेकिन कहते हैं ना कि जितने ज़्यादा लोग इस फील्ड में जाते हैं तो उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पीपल्स की कम हो जाती है, और स्कोप फिर लोगों को उस तरह से वो जॉब नहीं मिलती, वो उस तरह से काम नहीं कर पाते। तो शी सेड कि आप गेम डिज़ाइन चूज़ करना, मतलब उनकी ये सजेशन थी। देखो बात यह है कि एनिमेशन जो है ना वो एक मीडियम है, उस मीडियम की एप्लीकेशन बहुत सारी चीजों में है। लर्निंग द आर्ट ऑफ एनिमेशन इज गुड। अगर आप एनिमेशन का आर्ट सीख लेते हो, दैट इज एप्लीकेबल इन गेम्स, दैट इज एप्लीकेबल इन फिल्म्स, दैट इज एप्लीकेबल इन फिल्म एंड टीवी और एड्स और इन डिजिटल एप्स। तो आप गालिबन ये पूछ रहे हो कि फिल्म का स्कोप कम हो रहा है और गेम्स का स्कोप ज्यादा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अब जो आगे टाइम आ रहा है वो वीआर और एआर का आ रहा है, वर्चुअल रियलिटी का, और आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल एआई, इंटेलिजेंस, और उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी और ये भी है जी ना इसमें। ऑगमेंटेड रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो और वीआर में आ रहा है काफी ज्यादा। अब उसकी सबसे जो मेन एप्लीकेशन है वो गेम्स तो है ही। अब जो अनरियल इंजन 5 आया है उनका, वो उसके ग्राफिक्स इतने रियलिस्टिक हो गए हैं कि आपको जब गेम भी आप खेल रहे होते हो तो आपको लगता है कि आप जैसे कोई मूवी के ग्राफिक्स देख रहे हो। और विद वीआर यू कैन एक्चुअली आप गेम के अंदर जाके आप गेम को एक्चुअली खेल सकते हो। बट इस चीज की अब मजे की बात है कि उल्टा चीज हो रहा है कि जो गेम में एडवांसमेंट हो रही है वो चीज फिल्मों में आ रही है। अब टीवी और फिल्म में उसकी एप्लीकेशन किस तरह हो रही है कि ये जितने सेट्स हैं, ये अब वर्चुअल सेट्स बन रहे हैं। यहाँ पे एक स्टूडियो है पिक्सोमोंडो, और एक और स्टूडियो है आईएलएम, आपने शायद नाम सुना होगा, काफी बड़ा स्टूडियो है जिन्होंने स्टार वॉर्स बनाई थी। उन्होंने एक्चुअली इंस्टेड ऑफ शूटिंग फिल्म ऑन सेट, उन्होंने 3D ग्राफिक्स बनाए हैं अनरियल के अंदर, विच इज अ गेमिंग टूल अगेन। और उन वो ग्राफिक्स इतने सुपर रियलिस्टिक हैं कि उन्होंने एक 360 वॉल बनाई है एक्टर के इर्द गिर्द, और उस 360 वॉल के ऊपर आप पे ग्राफिक्स चल रहे हैं लाइफ साइज में।
और जब वो कैमरा वर्क उसमें करे तो आपको लगता है कि आप एक एक्चुअल एनवायरनमेंट में हैं। वो एनवायरनमेंट एक्चुअल फिजिकल नहीं है, दैट इज अ गेम डेवलप्ड अनरियल 5 एनवायरनमेंट, जिसको कि वो इंटीग्रेट करें। तो इन इन फ्यूचर आप ये नहीं कह सकते कि फिल्म्स कम हो रही हैं। फिल्म देखो, फिल्म जो है ना वो एक कंटेंट बेस्ड मीडियम है, और आगे जाके जितने भी काम जो लोग कह रहे हैं कि रोबोटिक्स आर गोइंग टू टेक ओवर ऑल द लेबर वर्क फ्रॉम पीपल, वो जो कंटेंट बेस्ड काम है ना, दैट इज अ क्रिएटिव बेस्ड काम। रोबोट जो है ना वो कंटेंट बना नहीं सकता, वो आपका लेबर बेस्ड काम जरूर कर सकता है। आपकी हो सकता है एप्स आगे इतनी डेवलप हो जाए कि आपको मॉडल हाथ से करने की जरूरत ही ना पड़े, आप बटन दबाएं तो आपको बिल्डिंग का मॉडल बना बनाया मिल जाए, बटन दबाएं तो आपको कैरेक्टर का मॉडल मिल जाए, बट वो कैरेक्टर का जो डिजाइन है वो रोबोट नहीं सोच सकता। सो ये कहना कि फिल्म का फ्यूचर नहीं है और गेम का है, दैट इज नॉट क्वाइट करेक्ट, क्योंकि कंटेंट जो है वो आइडियाज जो है वो इंसानों से ही आएंगे, वो मशीन से नहीं आ सकते। हैविंग सेड दैट, जो गेमिंग टेक्नोलॉजी है, एक टाइम था कि फिल्म की टेक्नोलॉजी गेम्स में जाती थी, अब यह है कि गेमिंग टेक्नोलॉजी हैज कम अलोंग सो फार कि फिल्म जो है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, इट इज टेकिंग ओवर फ्रॉम गेमिंग साइड, और उनसे कहते हैं कि भाई आपकी जो टेक्निक है वो हम अपनी फिल्मों में लाना चाहते हैं। तो एक टाइम ये आएगा कि वो ये ब्रांचेस रहेंगी नहीं, वो इट इज गोइंग टू मर्ज टुगेदर सो टाइटली कि आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि अच्छा यार ये गेम्स है, ये फिल्म्स है, अगर मैं एनिमेशन सीखूंगा तो मैं किस में जाऊंगा। आपने एनिमेशन अगर सीखी है तो यू कैन गो इन एनी फील्ड दैट यू वांट टू, एज लॉन्ग एज आपका जो है इंटरेस्ट उसके अंदर रहे। बिल्कुल ऐसे ही ना, जैसे आपने ड्राइंग सीख ली तो वो हर जगह अप्लाई हो रही होती है। आप ये नहीं कह बिल्कुल सकते कि ड्राइंग सीखने का कोई नुकसान होगा, कभी नहीं होगा आपको नुकसान। बिल्कुल कभी नहीं होगा। बिल्कुल, वो तो एक आर्ट फॉर्म है, वो कभी खत्म हो नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही। सैचुरेट जरूर हो जाती है, जैसे उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं उसमें सैचुरेट, बट आप ये देखो कि जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं उस लिहाज से टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलप हो रही है और कितनी ज्यादा इससे एग्जैक्टली। रिलेटेड फील्ड्स ओपन अप हो रही हैं। सो फास्ट पेस पे वो तो बहुत जी ही जी, फास्ट बहुत पे, ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा फास्ट पेस है ऐसे ही आज। है। और कोई पूछना चाहता है क्वेश्चन? बट सर इन पाकिस्तान तो इतनी एनिमेशन की वो भी नहीं है ना स्कोप। जिस तरीके से हमारी टीचर ने भी बोला है, हमारी एनिमेशन की टीचर बोलती है कि क्योंकि हमारे पास वो चीज़ नहीं है। जिस तरह आप एक शौक होता है, एक पैसा खर्च करते हैं आप एनिमेशन पे, पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है अभी एनिमेशन में। तो अगर कोई एनिमेशन कर भी ले तो वो उस टाइप की पाकिस्तान में एनिमेशन नहीं बना सकता जिस तरह बाहर की कंट्रीज बना सकती हैं। ऐसा क्यों है? देखो बात पता क्या है, ये ठीक बात है। अब इस पॉइंट पे पाकिस्तान को कंपेयर करना अमेरिका से, यूएस से, या यूके से, या कनाडा में जितनी प्रोडक्शन हो रही है, या हॉलीवुड इन जनरल से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, वो थोड़ा सा अनफेयर है। क्योंकि देखो इन्होंने, यू कैन टेक इट ऑल द वे बैक टू द टाइम्स ऑफ वॉल्टर डिज्नी, और उससे पहले भी, यू वी टॉकिंग वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने से ये लोग अपना आर्ट को डेवलप करते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये चीज बड़ी लेट आई है, और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं 2007 में पाकिस्तान जब गया था तो इट वाज एट वेरी अर्ली स्टेज। पाकिस्तान में लोग जो है ना टैलेंटेड बहुत हैं। मैं अक्सर जब भी मेरा पाकिस्तान चक्कर लगता है, और फिर मेरे कुछ दोस्त यार हैं जो इस फील्ड में अपना काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में एक्चुअली लोग बड़े टैलेंटेड हैं अपनी अपनी फील्ड में। कुछ मॉडलर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, कुछ जो है आपके टेक्सचर आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, डिफरेंट फील्ड के लोग बहुत अच्छा काम करें, कुछ प्रोग्रामिंग के लोग बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान में। द पॉइंट इज, एक तो ये अच्छा स्टेप ये है कि अब पाकिस्तान में एनिमेशन आना शुरू हो गई है। आपको उस लेवल पे आने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं पहुंच सकते, हम पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम पहुंच जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोगों की अवेयरनेस कैसी है। जैसे आपने कहा कि लोगों को आइडिया नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मुझे तो एक टाइम पे ऐसा भी मेरे साथ हुआ था। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है कि ये तो शायद बाहर आने से पहले की बात है। तो हमने एक क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट किया था, तो वो करके हमने उनको दिया, तो वो आगे से क्लाइंट कहता है कि सर तुसी की कीता है, तो सारा कंप्यूटर ने काम कर देता है। तो उसको हमने कहा कि कंप्यूटर के पीछे इंसान भी बैठा है जो काम कर रहा है। तो वो जो एक अवेयरनेस है ना कि कंप्यूटर के ऊपर बैठ के काम करना, और एनिमेशन, टू रिकग्नाइज एनिमेशन एज एन आर्ट फॉर्म, वो एग्जैक्टली।
वो बड़ा जरूरी है। वो अवेयरनेस अभी लोगों में नहीं है, तो अभी भी लोगों में ये अवेयरनेस है कि यार हम क्यों पैसा लगाएं जब कंप्यूटर ने ही सारा काम करना है। तो वो अवेयरनेस चेंज करना बड़ा जरूरी है, और उसके लिए अभी मूवीज आ रही हैं पाकिस्तान में। अभी जितनी भी एनिमेटेड मूवीज बनी है, बहुत ह्यूज जंप है, एंड आई पर्सनली फील इट्स गोइंग टू गो अप फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। वी आर क्योंकि अब काफी काफी फुली एनिमेटेड फिल्म्स भी आई हैं बीच में, जो बच्चा है बच्चों के लिए, लेकिन जो आपने मौला जेट वाली बात की है, दैट इज अमेजिंग ना, क्योंकि आपने अपनी मेन स्ट्रीम फिल्म में इसको ऐड करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल दैट इज मतलब ह्यूज लीप एक्चुअली, मेरा तो ये ख्याल है। और फिर ऐसा ऐसा लोगों के लिए जगह बनना शुरू हो जाएगी, और अक्सर आपको अपनी फील्ड की जगह खुद क्रिएट करनी पड़ती है। ये हमारे साथ हो चुका हुआ है, आपको खुद अंदाजा होगा कि हम लोगों बिल्कुल ने ऐसा तो ही खुद है। क्रिएट किया है। ये तो कहाँ आर्ट से हम कहाँ हाथ से करने वाले कामों से मूव कर गए हैं कंप्यूटर में। ये जनरेशन तो पैदा ही कंप्यूटर टाइम पे हुई है, हम तो बात बिल्कुल के ऐसा ही है। पुराने लोग बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही ही। है। और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, या फिर हम वाइंड अप करें सेशन? हाँ जी, आमना कुछ पूछना चाह रही थी? यस मैम। जी जी, पूछिए। मेरा एक सर से क्वेश्चन है कि हमारी लाइफ में ना एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने आप को डिस्कवर करते हैं। तो आपकी लाइफ में वो कौन सा मूवमेंट था जहाँ आपने अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को डिस्कवर किया था कि ये मैं हूँ, मेरी लाइफ में जो मैं था उससे मुझे बाहर निकल के अपने आप को डिस्कवर करना है? ये तो बड़ा हैवी सा सवाल है आपने किया। अम, सर ग्राफिक्स के स्टूडेंट हैवी क्वेश्चन ही करते हैं। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बात है, अच्छी बात है। मुझे तो लगता है आपके आर्किटेक्चर से ही जब आपने मूव किया था ना कंप्यूटर एनिमेटेड, मुझे तो लगता है आप लोगों का थीसिस उस वक्त भी थोड़ा सा ज्यादा ही हाई फाई टाइप का बिल्कुल, था। मुझे याद है मेरा और शहजाद का तो बिल्कुल ही एक अलग एंगल पे था। तो बिल्कुल। एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दूं, और इस सवाल को, और मैं ये आपको कहूं कि अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि व्हेन डिड आई रियलाइज यार दिस इज व्हाट आई एम एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, तो जब मैं आर्किटेक्चर में था, आई रियली लाइक आर्किटेक्चर। मुझे बड़ा पसंद था आर्किटेक्चर। किसी भी चीज में जो क्रिएटिव प्रोसेस इन्वॉल्व है, वो मुझे हमेशा से अपील करता था। अब सिर्फ एक क्रिएटिव साइड काफी नहीं थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड द टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स, जिसमें कि 3D एनिमेशन आती है, तो वो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इस तरह किया कि क्यूरियोसिटी मेरे में बहुत आ गई कि आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि यार ये मूवीज अगर बनाते हैं तो किस तरह बनाते हैं। And then gradually I moved on to that, and I said, I think this is my true calling. This is what I want to do eventually. Because this involves the technical side, and this involves the artistic side and the storytelling side of things. And that completes Exactly. me as a whole. So this is what I want to do. So wahan pe then you realize कि अच्छा यार, I think I picked up the right side of what I want to do in life, और अब यही मैंने करना है। मैं आपका कंफर्ट जोन से ज्यादा तो ये था कि रियलाइजेशन हुई कि आप असल में चाहते तो वो हैं जो कि नॉर्मली नहीं करते। क्योंकि ये बात है ना आसिम कि यहाँ पे आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं थी, आपको जी डिसिप्लिन ही पता नहीं होते थे कि ये हो सकता है। और जो जी आप जी चाह रहे थे उसके लिए फिर आपको ढूंढना पड़ता था कि अगर मेरे जैसा जो बंदा है वो किस डायरेक्शन में जाए। तो आपने एक अच्छी डायरेक्शन चूज की, एंड मतलब उसमें आपने बहुत इंकम्प्लिशमेंट्स आपकी बहुत ज्यादा हैं। और माशाल्लाह आपने तो हमें पाकिस्तान के लिए भी जो है ना प्राइड है, डेफिनेटली हमारे लिए भी प्राइड है बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बड़ी बात है इस तरह से इसमें करना। कोई और क्वेश्चन करना चाहता है, या हम सर को अब जाने दें? उनकी बहुत लेट नाइट हो चुका होगा इस वक्त। जी बेटा। क्वेश्चन सर। हाँ पूछ लें, पूछे पूछे। लास्ट है ये। जी। नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, पूछे। पूछे। सर एक हम लोगों का एक स्पेशल जो होता है, हर बंदे का एक स्पेशल आर्टिस्टिक स्टाइल होता है। वो अपने हर काम में स्टाइल फॉलो करता है जो उसका खुद का बनाया होता है। तो आपके काम में ऐसा कौन सा स्टाइल या फिर ऐसी कौन सी खास चीज़ है जो आप अमूमन तौर पे वो शो करते हैं, मतलब वो टच लाजमी देते हैं?
जब हम मूवीज पे काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मोर देन एनीथिंग एल्स हमें देखना पड़ता है कि क्लाइंट की या डायरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, और स्क्रीन प्ले या स्टोरी टेलिंग जो है उसके अंदर जो आपका स्क्रिप्ट है उसकी डिमांड क्या है। उसके अंदर हर एक आर्टिस्ट का एक अपना एक सबकॉन्शियस किस्म का एक अपना स्टाइल जरूर होता है जिससे आप बता सकते हैं कि यार ये इस आर्टिस्ट का काम है। um, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस क्योंकि वो एक कॉन्टिन्यूटी के साथ चलना पड़ता है। बट अगर आप आर्ट या स्टाइल की बात करें तो मोस्ट ऑफ द वर्क दैट आई लाइक, टिम बर्टन का जो स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग है और एनिमेशन है मुझे उस टाइप का बहुत पसंद है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा आर्ट मोर लेस उसके अराउंड रिवॉल्व करे। ही हैज अ वेरी फनी एंड अ डार्क साइड टू हिज कैरेक्टर। अगर आप उसकी मूवीज देखें, नाइटमेयर बिफोर क्रिसमस या कोर्प्स ब्राइड या आप ये चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, ये सारे जो है ना उसके कैरेक्टर्स बड़े यूनिक हैं। दे डोंट बिलोंग इन द फिजिकल वर्ल्ड येट दे आर फिजिकल कैरेक्टर्स जिनकी एक बड़ी डार्क साइड है येट अ वेरी फनी साइड टू इट। तो उस टाइप की कैरेक्टराइजेशन और स्टोरी टेलिंग आई ट्राई एंड पुट दैट सॉर्ट ऑफ आइडिया इन माय वर्क। सो बेसिकली आप अनरियलिस्टिक कैरेक्टर को ज्यादा लाइक करते हैं बनिस्बत जो अम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अनरियलिस्टिक से अनरियलिस्टिक कहना भी ठीक है, मोर लाइक फैंटेसी कैरेक्टर्स कैन जो इमेजिनेशन पे बेस्ड हो। अब एक मजे की बात है कि एनिमेशन के मेरा एक प्रोफेसर था, वो एक और उसने मजे की बात की थी कि एनिमेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इट इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रियलिज्म बट इट शुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी। तो कि आपने उसको असल लाइफ की चीजें नहीं देनी, बट आपने उसको बिलीवेबल इसलिए बनाना है कि अगर एक कार्टून कैरेक्टर भी है तो उसके लिए जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स है दुनिया के, अगर वो चल रहा है तो उसके अंदर एक फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो है वो आने चाहिए। ऑल्दो ही इज अ स्टाइलाइज्ड कैरेक्टर, ही इज अ फैंटेसी कैरेक्टर, बट ही इज लिविंग एंड बिलीवेबल इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लगता है टिम बर्टन की बहुत डेप्थ भी होती है उसके कैरेक्टर्स में, बहुत ही बहुत ज्यादा। डीपर इमोशंस है, बहुत बिल्कुल डीप है उसकी जो बात होती है। वो बिल्कुल आपको ऐसे। सरफेस लेवल आपको नजर नहीं आती, वही एक सबकॉन्शियस लेवल पे वो बहुत काम करता है जी कि जी। वो डीपर इमोशंस क्या है या डीपर फीलिंग्स क्या है किसी भी कैरेक्टर की। बहुत बहुत जबरदस्त था उसका बहुत काम। जबरदस्त काम है उसका, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कोई पूछना चाहते हैं क्वेश्चन? मैम मैंने पूछना था, जी जी लाइक पूछिए। मैं जो है 3D करेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ ना, मतलब तो अगर सर बता दें कि कोई करेक्टर आर्टिस्ट हो जिनको हम उनका काम देख के उनको फॉलो करें, लाइक कोई अच्छे से। मतलब और कोई डिफरेंट है जिनको देख के बच्चे सीख सकते हैं या जिनका काम कहीं। मैं जनरली, अब जैसे मैंने आपको टिम बर्टन का बताया, टिम बर्टन की कैरेक्टर्स मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उसका एक बड़ा खास पर्टिकुलर स्टाइल है। एकदम से तो मेरे दिमाग में उस तरह नहीं है कोई पर्टिकुलर नाम, बट आई कैन सेंड यू अ फ्यू लिंक्स सम ऑफ द आर्टिस्ट ठीक दैट है। आई फॉलो, ठीक। जो कि आप देख सकते हो और उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो। एक इंडियन कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उसका नाम है दाता राज। उसका काम है पिंटरेस्ट पे, ही इज एन अमेजिंग कैरेक्टर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट। उसका काम मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। इसी तरह एक दो और लोग हैं, इयन स्प्रिग एक बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है, उसका काम ये सारे लिंक्स जो है ना मैं आपके टीचर को भेज दूंगा तो आप उसको ज़रूर देख लेना। और ठीक तो है। ओके और थैंक यू। नो प्रॉब्लम, वो भी आप देख लेना, और बहुत सारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको मिलेंगे कि किस किस तरह के लोगों का मज़ेदार कैरेक्टर वर्क है। बिल्कुल सही। जी कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है? ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच आसम, आपने टाइम निकाला हम लोगों के लिए एंड दे हैव लर्नड लॉट फ्रॉम यू। बहुत डिटेल में हमने बात की है हर चीज के ऊपर। थैंक यू थैंक सो यू मच सो जी। मच। और आपके लिए ऑल द बेस्ट कि आप और तरक्की करें, हमारा नाम और रोशन करें पाकिस्तान का। थैंक यू जी, और अब बहुत हम जरूर देखेंगे जो फिल्म आएगी मौला जट बिल्कुल वाली, तो जरूर डेफिनेटली देखिए गोना देखिए। वॉच और दैट। मुझे इफ यू नीड एनीथिंग आप मुझे जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग बिल्कुल एनीथिंग।
थैंक यू जी। Thank you so much. Thank you so much. Okay, take care. Allah. Allah Hafiz.